Hello, dear students. I welcome you all to ER classes. How are you all doing? I hope that all of you are doing well. Then let's begin our chapter. Today we are going to study matter in our surroundings. As the name itself, the first question that arises is what is matter? The first question that arises is what is matter? For this question itself, we have to look around ourselves. Everything we see around us has different shape, size, texture, right? These things that have different shape, size, structure, they are made up of some material, right? They are made up of some materials and these materials are itself called matter. इन्हीं materials को हमने क्या कहा? Matter. Example के तौर पे let's take air that we breathe, food, plants, animals, water, phone, tablets, a pen, copy, everything is matter because they are made up of some material. Earlier, this is the belief of Indian philosophers that we were talking about everything, right? They believe that everything around us are made up of five elements. And they said these five elements are sky, air, water, earth, and fire. Okay. So their belief is this, that these five elements together combines to form things around us. So, and they call these five elements Panch Tattva. But again, more studies are happen. बहुत सारी studies हुई, बहुत सारे scientists लोग अपनी स्टडी लेकर सामने आए. सब्जेक्ट क्या था उनका? मैटर, राइट? तो उन्होंने क्या किया? द क्लासिफिकेशन की मैटर की. And they classify matter on two bases. First is the physical characteristics and second is the chemical nature. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उन्होंने तीन के अंदर डिवाइड किया, विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और केमिकल नेचर की बात करें तो उन्होंने फिर तीन पे डिवाइड किया, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर. जो मैटर का ये जो केमिकल नेचर पे डिवीजन है वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो मैटर का क्लासिफिकेशन है वो, जो कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. द फर्स्ट टॉपिक दैट came is physical nature of matter. In this, the matter के physical nature की बात की गई है और बताया गया है कि matter is made up of particles. And this line itself we can check by this experiment. This experiment states that आपके पास एक बीकर है जिसमें आपने पानी भरा हुआ है, उसमें आपने एक चम्मच सॉल्ट या शुगर डाला, उसे थोड़ी देर हिलाया और आप देखते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर जो हमने इनिशियल स्टेट में लिया था बीकर में, बिल्कुल सेम वही स्टेट में हमें वाटर मिलता है. तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स वाटर के अंदर हम मिला रहे थे, स्टर कर रहे थे, वो कहाँ गायब हो गए? वो ज़रूर कहीं ना कहीं गायब ही हुए उस पानी के कंटेनर में, राइट? और पानी के कंटेनर में गायब होने का मतलब है कि पानी के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में ज़रूर कोई ना कोई स्पेस होगी. उसी स्पेस के अंदर सॉल्ट के पार्टिकल्स जाके क्या अंदर बैठे होंगे, राइट? तभी तो वो बिल्कुल गायब हो गए, ट्रांसपेरेंट. Salt is dissolved completely into that water. Now next move to
other things like metal is made up, that states that metal is made up of particles. जरूर वाटर के भी कुछ पार्टिकल्स होंगे जिनके बीच में कुछ स्पेस होगी, उन्हीं स्पेस के अंदर सॉल्ट के पार्टिकल्स भी जाके सिट करेंगे, वो सिटिंग, राइट. Hence we can't see the particles of salt in the final mixture of water. The second physical nature of matter is that the particles of matter are very small and they keep dividing until the stage is reached where no more division is possible. इसका भी एग्जाम्पल एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम देख सकते हैं, वो ये कि हमने एक बीकर लिया जिसमें हमने 100 ml ऑफ वाटर लिया एंड वी ऐड 1 स्पून ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट. पोटेशियम पर मैग्नेट की 1 स्पून हमने ली और इस 100 ml ऑफ वाटर के अंदर हमने क्या किया, डाल दिया. And what we see, the first solution that we made after adding 1 spoon of potassium permanganate is complete dark pink solution. इसी solution से हमने 10 ml solution निकाला and then we add this 10 ml solution to 90 ml of water in another beaker. What we see, जो solution का पहला जो dark pink color solution था बना था, उससे थोड़ा light pink solution हमने दूसरे solution के beaker में देखा. हमने सेकेंड वाले बीकर जो हमने जिसमें ऐड किया था हमने 10 ml, उससे हमने फिर 10 ml ड्रॉ किया और तीसरे बीकर में हमने डाला जो कि 90 ml ऑफ वाटर कंटेन कर रखा था. फिर हमने ये प्रोसेस आगे फर्दर फॉलो की और हमने देखा कि लास्ट एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ हमें सिर्फ प्लेन वाटर, ट्रांसपेरेंट वाटर मिलेगा जिसमें कोई कलर नहीं होगा. यही एक एक्सपेरिमेंट आपको बताता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर, 1 स्पून फुल ऑफ पोटेशियम मैग्नेट हमने ली, वो पार्टिकल कितना डिवाइड हुआ और कितने सॉल्यूशंस को उसने कलर किया. बट एक स्टेज आएगी जहां वो पार्टिकल डिवाइड और नहीं हो पाएगा और उसके बाद में हमें प्योर वाटर ही मिलेगा चाहे हम कितना भी सॉल्यूशन उसके दूसरे वाले बीकर में डालें. तो हमने देखा कि 2 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर हमने पढ़े. पहला फिजिकल नेचर क्या था कि जो मैटर है इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. सेकेंड था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है बहुत स्मॉल है, वो डिवाइड होते रहते हैं उस स्टेज तक जब तक कि डिवीजन पॉसिबल है. आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या देखते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. व्हाट डज दैट मीन? हमने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने एक बीकर में हमने शुगर डाली थी. उस बीकर में हमारे पास क्या था, वाटर था और हमने क्या, सॉल्ट या शुगर, आप जो भी डालना चाहे वो डाल सकते हैं, आपने डाली और आपने देखा कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर जो हमारे पास इनिशियल स्टेज पे था वैसा ही सॉल्यूशन हमें यहाँ मिल गया. इसका मतलब जो वाटर का जो मिक्सचर था उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में ज़रूर कोई ना कोई स्पेस थी जिसके अंदर सॉल्ट के पार्टिकल्स जाके डिसॉल्व हो गए, राइट. दे गेट दैट स्पेस एंड बाय विच we said that the characteristics of particle of matter, first thing that we have is they have space between them. But this is not only case where the space between them is explained. अगर हम डेटॉल को भी पानी में मिक्स करते हैं तो भी वो डेटॉल मिक्स हो जाता है, ट्रांसपेरेंट नहीं, बट द डेटॉल के जो पार्टिकल्स हैं वो हमें नहीं दिखाई देते, राइट. पोटेशियम परमैंगनेट का भी हमने सॉल्यूशन देखा, कलर ज़रूर हमने देखा सॉल्यूशन का चेंज हुआ, बट हमने ये भी देखा कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स थे वो हमें नहीं दिखाई दे रहे थे, जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो हमें नहीं दिखाई दे रहे थे. क्यों? क्योंकि वो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जाके फंस गए थे. इसीलिए हमने देखा एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन हमें मिला जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट को भी डाला. Let's see the next characteristics of particle of matter. The second characteristics of particle of matter are they are continuously moving. We already studied in the previous classes that if anything moves, they possesses an energy which is called kinetic energy. इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि particle of matter also possesses kinetic energy. यही हमने दोबारा ये देखा कि टेम्परेचर अगर आप राइज कर दें पार्टिकल्स का तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड से भागने लगेंगे, वो फास्ट. अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो
टेम्परेचर बढ़ाने से वो फास्ट भाग रहे हैं, दैट मीन्स अगर स्लो भाग रहे होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी विल बी स्लो, बट अगर फास्ट भाग रहे हैं इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो हेयर द टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे ही काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। हमने दूसरी, अब हम बात करेंगे डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या फिनोमेना है? डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जहां इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर हैपेंस। जैसे कि हमने वाटर और सॉल्ट का देखा कि दोनों एक दूसरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिए। सॉल्ट ने जो स्पेसेस थी वाटर पार्टिकल्स के बीच में वो ऑक्यूपाई कर ली और एक ट्रांसपेरेंट मिक्सचर दिया। दैट मीन्स सॉल्ट जो है वो कम्प्लीटली डिफ्यूज हो गया दूसरे लिक्विड, दूसरे स्टेट ऑफ मैटर के अंदर, राइट। सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की बात करें, अगर हम इसे हीट करेंगे तो डिफ्यूजन जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन हीट करने पे टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होने से पार्टिकल्स ज़्यादा जल्दी मूव करेंगे और जल्दी से जल्दी जो भी इंटर स्पेस है दूसरे डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर के अंदर, वो इंटर स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लिए जाएगी। इसीलिए हमने देखा ऑन हीटिंग द डिफ्यूजन बिकम फास्टर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर की बात कर लेते हैं, which is that particles of matter attract each other. Okay, attract each other, that means they have some force between them. अट्रैक्शन का मतलब है कि दोनों के बीच में जरूर कोई ना कोई फोर्स होगी। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि सारे पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स है, और हम ये इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। पहला जो डायग्राम है, जो पहला स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो सॉलिड्स का है, दूसरा आप देख रहे हैं वो लिक्विड का है, तीसरा जो आप देख रहे हैं वो गैसेस का है। ओके, तो सॉलिड में आप देख रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड फॉर्म में है। इसका मतलब फोर्स जो है अट्रैक्शन वाली वो बहुत ज़्यादा है सॉलिड में। वहीं लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड के पार्टिकल्स ज़्यादा दूर तो नहीं पर दूर दूर है। इसका मतलब उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके बीच में है वो कम है, एटलीस्ट सॉलिड से तो कम है। इसके बाद हम गैसेस फॉर्म में जाते हैं। गैसेस फॉर्म में देखेंगे कि पार्टिकल्स और भी बहुत ज़्यादा दूर है, और ये देख के हम कह सकते हैं कि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में, तो बहुत ही कम, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है। अगर गैसेस को हम लोग ऐसे छोड़ दें तो वो बहुत ज़्यादा दूर तक स्पेंड होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही लो लेवल पर होता है। हमने पहले काइनेटिक एनर्जी की बात की, वो भी हम इसी डायग्राम के साथ देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर कैसे होगी जब यहाँ स्पेस ही नहीं है सॉलिड पार्टिकल्स को मूव करने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी की बात अगर हम करें तो सॉलिड के केस में काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल बहुत कम होगी। फिर देन लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बन रही है, और गैसेस में तो बहुत ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। अब वहीं बात करें हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात अगर हम करें कि किसके बीच में कितनी ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो इसमें बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। जो हमने सीक्वेंस काइनेटिक एनर्जी में लिया उसका बिल्कुल रिवर्स, कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, देन लिक्विड एंड देन गैसेस। गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जस्ट नेग्लिजिबल। So this is what we studied here. Let's move to the next topic. State of matter के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग इतनी देर से पढ़ते ही आ रहे हैं कि हम स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दीज आर द स्टेट ऑफ मैटर, और ये किस बेसिस पे क्लासीफाई किए गए हैं? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स अलग तरीके से अरेंज्ड है, लिक्विड के अलग तरीके से अरेंज्ड है, गैसेस के अलग तरीके से अरेंज्ड है, इसी बेसिस पे इन्हें क्लासीफाई किया गया है। तो चलिए सबको इंडिविजुअली भी पढ़ लिया जाए। तो शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट से। सॉलिड स्टेट का एग्जांपल आपके सामने ही है, पेन, बुक, कॉपी, आपका फ़ोन जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं, चेयर, टेबल जहाँ पे भी आप बैठे होंगे, सारे क्या है? सॉलिड स्टेट के एग्जांपल, सब सॉलिड्स हैं। इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि सॉलिड्स के पास एक डेफिनेट शेप है, डिस्टेंट बाउंड्रीज है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, राइट। इस
सॉलिड के अंदर ये टेंडेंसी भी है कि वो अपनी शेप को क्या है मेंटेन कर सके। जब आउटसाइड फोर्स से मेंटेन करके रखता है सॉलिड अपनी शेप को, इसका मतलब इसकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये है कि आप इसे ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, ज़्यादा आप इसे दबा नहीं सकते। सॉलिड स्टेट के जितने भी मैटर्स होंगे, पेन को आप ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते, राइट। पेन को अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। दैट मीन्स अगर सॉलिड को बाहर की जो फोर्स है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच की जो अट्रैक्शन फोर्स है, अगर उससे ज़्यादा बाहर से जो फोर्स आ रही है तो वो क्या करेंगे, खुद को तोड़ देंगे, खुद को ब्रेक कर देंगे। इसीलिए हम सॉलिड्स को रिजिड भी कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे चलिए हम ले लेते हैं रबर बैंड। रबर बैंड को हम लोग स्ट्रेच करेंगे तो वो वापस अपनी शेप क्या करेगा, मेंटेन कर लेगा, वापस अपनी शेप में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं सॉल्ट और शुगर। उसे हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, जितने ही साइज में वो है उसी साइज में वो रहेंगे, राइट, और अपनी शेप मेंटेन करके रखते हैं। वैसे स्पंज की बात करें, स्पंज क्या होता है, स्पंज होता है जिसके पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में एयर ऑक्यूपाई होती है। ये पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, एयर होती है, जिसकी वजह से वो फुला हुआ होता है। जैसे हम बाहर से आउटसाइड फोर्स बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा कंप्रेस होगा, क्योंकि इसकी एयर जो होगी, जितनी भी अंदर की एयर है वो बाहर निकल जाएंगी। पर वापस जैसे हमने ये फोर्स हटाई तो वापस अपने इनिशियल स्टेज में आ जाएगा, जहाँ एयर इसके जो इंटर स्पेस है उसके अंदर फिलअप हो जाएंगी और वापस अपनी जो शेप है उसे ऑब्टेन कर लेगा, ठीक है। तो हमने देख लिया सॉलिड में कि उनकी डेफिनेट शेप है, डिस्टेंट बाउंड्रीज है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है, वो अपनी शेप मेंटेन करके रखते हैं जब तक कि आउटसाइड फोर्स उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा ना हो। अगर आउटसाइड फोर्स जो है उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा है तो वो अपने आप को ब्रेक कर लेते हैं, राइट। चलिए दूसरे स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं, एंड दैट इज लिक्विड स्टेट। एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए ही हैं, जैसे कि वाटर हुआ, कुकिंग ड्रिंक्स हुई, कोल्ड ड्रिंक्स, मिल्क, जूसेस, ये सभी एग्जाम्पल है लिक्विड के। अब लिक्विड की बात की जाए तो इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास एक ग्लास है जो इस तरह की शेप का है, इसमें अगर हमने लिक्विड 50 ml जूस डाल रखा है, फिर हम सोचते हैं कि हमें ऐसे ग्लास में नहीं बल्कि इस तरह के ग्लास में चाहिए। अगर यही 50 ml हम इसमें डाल देते हैं तो इसकी शेप जो होगी, पहले यहाँ रेक्टेंगल शेप में पानी ने शेप ले रखी थी और यहाँ पे कुछ ओवल शेप में बन जाएगी पानी की। इसका मतलब इसकी फिक्स्ड शेप नहीं है बट फिक्स्ड वॉल्यूम है। दूसरी लाइन में ये लिख रखा है कि दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस भी कंटेनर में रखा जाएगा उसी कंटेनर की शेप को वो टेक कर लेंगे। लिक्विड क्या है, फ्लो करता है, चेंज करता है अपनी शेप को फ्लो करते हुए, इसीलिए हम इसे रिजिड नहीं कह सकते। जबकि सॉलिड को हमने क्या कहा, रिजिड है, क्योंकि वो अपनी शेप को मेंटेन रखता है। क्योंकि लिक्विड अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर पाते, वो अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, फ्लो करते हैं, इसीलिए लिक्विड्स को हम लोग फ्लूइड भी कहते हैं। अब बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन की हमने डेफिनेशन पढ़ेंगे आप। तो डिफ्यूजन में क्या है, पार्टिकल्स जो हैं, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मैटर हैं वो एक दूसरे की इंटर जो स्पेस है उसको ऑक्युपाई करेंगे और बिल्कुल डिफ्यूज हो जाएंगे। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्यूजन, राइट। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस भी क्या है, लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे, पर पहले देखते हैं कि सॉलिड का जो सॉलिड है अगर हम उसे लिक्विड में डाल दें तो इसका क्या एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल वाटर और सॉल्ट वाला। वाटर लिक्विड है और सॉल्ट को हमने इसमें मिक्स किया, राइट। वहीं लिक्विड के अंदर अगर हम मिक्सचर देखें, उसका एग्जाम्पल क्या था, उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि वाटर के अंदर हमने कुछ ड्रॉप्स ऑफ इंक मिला दी, ये भी डिफ्यूज हो जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, आप देख ही सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि गैस का लिक्विड के अंदर, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ओशियंस, वाटर बॉडीज।
वाटर बॉडी से आप कह सकते हैं ओशियन, सीज, जहाँ पे एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स रहते हैं। वो लोग बाहर के ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करते, वो लोग पानी के अंदर जो ऑक्सीजन यानी जो गैस जो डिफ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है उसी ऑक्सीजन को टेकअप करते हैं और उसी से उनका रेस्पिरेशन होता है और बाकी लाइफ प्रोसेसेस रहती है। तो हमने देखा कि गैसेस भी लिक्विड में डिफ्यूज आराम से हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात की जाए। रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितनी है। सबसे पहले पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सॉलिड में सबसे कम है, इंटर स्पेस सॉलिड में है ही नहीं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लिक्विड में बात करें तो थोड़ी स्पेस है, सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा है, गैसेस के कंपैरिजन में जो इंटर स्पेस लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में वो कम है। तो लिक्विड में डिफ्यूजन जल्दी होगा सॉलिड से। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करता है इंटर स्पेस पे। जितनी ज़्यादा इंटर स्पेस होगी पार्टिकल्स के बीच में उतनी ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी। इससे क्लियरली हम पता कर सकते हैं कि गैसेस में सबसे ज़्यादा इंटर स्पेस होती है। पार्टिकल्स के बीच में जो इंट्रा स्पेस है, जो एक दूसरे के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है गैसेस में, देन लिक्विड्स में, देन सॉलिड में बहुत बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो गैसेस में रेट ऑफ बहुत ज़्यादा है, देन सॉलिड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा, होप करती हूँ। आगे बात करते हैं थर्ड स्टेट ऑफ मैटर की, जो कि गैसेस स्टेट है। सबसे पहली लाइन यही लिख रखी है कि गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है। तो कंप्रेसिबिलिटी में मैंने आपको बताया कि सॉलिड की बात की थी कि जहाँ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी थी, दैट मीन्स वहाँ जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं थी तो उन्हें कंप्रेस कैसे किया जाए। जबकि हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के बीच में तो भरपूर स्पेसेस हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसेस हैं। इसका मतलब इन्हें कंप्रेस किया जा सकता है और इसीलिए गैसेस को कहा गया है कि वो हाईली कंप्रेसिबल है। देन सॉलिड एंड लिक्विड। सबसे पहला एग्जांपल है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि हमारे घर में किचन यूज होती है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हॉस्पिटल होते हैं उनमें भी कंप्रेस्ड फॉर्म में ऑक्सीजन को डाला जाता है। और तीसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का, जो कि एज अ फ्यूल व्हीकल्स में यूज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि लंबे ट्रैवल के लिए, लंबे दूर तक अगर ट्रैवल करना है तो आपको बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है। और सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है लंबे ट्रैवल के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी गैस हम एक छोटे कंटेनर में भी कैरी करके लेके जा सकते हैं, राइट। इसीलिए हम फ्यूल की तरह व्हीकल्स में यूज़ करते हैं और दिस इज़ वेरी चीप एंड ऑल्सो वेरी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। दैट वी विल स्टडी इन फर्दर क्लासेस। सो कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस क्या है? पॉल्यूशन नहीं करती है और ऑल्सो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हमें चाहिए कम सीएनजी तो हम छोटे से सिलेंडर में भी कैरी कर सकते हैं, इसीलिए एज अ फ्यूल व्हीकल में यूज़ की जाती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी का एग्जांपल, गैसेस कितने कंप्रेस हो सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में स्पेस जो है आप देख सकते हैं, ये वाली स्पेस जो है, ये वाली स्पेस कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है कि अगर हम इसे कंप्रेस करते हैं, ऊपर से फोर्स लगाते हैं तो इनके बीच की स्पेस कम होगी और ये लोग पास आना शुरू कर देंगे, तो ये कंप्रेस हो सकती है। सॉलिड के केस में स्पेस ही नहीं होती है तो इसलिए कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड में थोड़ा कंप्रेशन पॉसिबल है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी और गैसेस स्टेज की। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। अगर आपकी मॉम कुक कर रही होगी किचन में और अगर आप अपने रूम में या किसी भी आप बाहर जगह बैठे हुए हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपकी मॉम क्या कुक कर रही है, राइट। कैसे? क्योंकि जो अरोमा है फूड का, वो एयर के पार्टिकल्स के साथ क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा। मैंने कहा गैसेस स्टेट में जो अरोमा जो है उसका मतलब ये गैसेस ही डिफ्यूज हो रहे हैं फूड के एयर के अंदर और आपको दूर तक पता चल जाएगा कि आपकी मॉम क्या खाने में बना रही है, राइट। सो चलिए यही बात हो गई यहाँ पे। अगली बात कर लेते हैं गैसेस स्टेज की, कि जो इनके पार्टिकल्स हैं वो रेंडमली मूव करते हैं और हाई स्पीड से, क्योंकि इनके बीच में स्पेस इतनी ज़्यादा है कि मूव भी ये बहुत जल्दी मूव भी कर सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। इसीलिए हमने वो काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल में देखा कि गैसेस में काइनेटिक एनर्जी इज लाइक द हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा गैसेस स्टेट में ही काइनेटिक एनर्जी होगी।
क्योंकि इनके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है, ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं क्योंकि हर जगह पार्टिकल्स इन्हें नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसी वजह से गैसेस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है जिस भी कंटेनर में उन्हें रखा जाता है। प्रेशर का मतलब है जो फोर्स गैसेस पार्टिकल वॉल पे लगा रहे हैं, जिस कंटेनर पे उन्हें रखा गया है, जिस कंटेनर में उन्हें रखा गया है, जिस उनकी वॉल के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं रैंडमली हाई स्पीड से मूव करते हुए, उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। और प्रेशर का फॉर्मूला यही होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो गैसेस क्या करेंगी, एक्सर्ट करेंगी प्रेशर को भी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आप ये डायग्राम से देख सकते हैं कि गैसेस के बीच में जो इंटर स्पेस है कितनी ज़्यादा है। लिक्विड के बीच में कम है, सॉलिड के बीच में बिल्कुल कम है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमें जो गैसेस फॉर्म है मैटर की, उसे क्लोज्ड कंटेनर में रखना पड़ता है, जबकि सॉलिड और लिक्विड को क्लोज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ओपन कंटेनर्स में भी रखा जा सकता है। अब बात करते हैं दो और स्टेट की। अब तक मैंने आपको बताया 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम पढ़ते आ रहे थे, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। बट नाउ अभी के टाइम में बहुत रिसेंटली ही 2 और स्टेट ऑफ मैटर है जिन्हें इंक्लूड कर दिया गया है स्टेट ऑफ मैटर्स में, जो कि है प्लाज्मा और दूसरा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा का मतलब है द स्टेट ये कंसिस्ट होगी सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, राइट। These particles are in the form of ionized gases। आप फ्लोरोसेंट बल्ब और नियॉन साइन बल्ब को देख सकते हैं। ये फ्लोरोसेंट बल्ब है, ये फ्लोरोसेंट है, और ये जो है वो नियॉन साइन, नियॉन साइज पता नहीं कैसे नहीं चल रहा, नियॉन साइन बल्ब्स हैं, राइट। These are the examples of plasma. How we can say they glows, right? जैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज इनके अंदर से पास ऑन होगा, इनके अंदर जो प्लाज्मा है वो ग्लो करेगा, जिसकी वजह से ये डिफरेंट कलर्स शो करते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर कौन से कलर्स होते हैं, गैसेस, इनके अंदर जो है गैसेस फिल अप होती हैं। तो जो गैसेस फिल होती है फ्लोरोसेंट ट्यूब्स के अंदर वो हीलियम गैसेस और कुछ अदर गैसेस होती है। वहीं अगर नियॉन की बात करें तो उनमें नियॉन गैसेस इनसाइड फिल होती हैं। जिस अगर इन गैसेस के थ्रू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो उनका जो प्लाज्मा है, जो गैसेस हैं, वो ग्लो करेंगी इनसाइड द ट्यूब और बल्ब, और उसी की वजह से हमें डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। और ये कलर डिपेंड करेंगे नेचर ऑफ द गैस। जो कलर हमें देखने को मिलेंगे वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेंगे। सन और स्टार भी इसी की वजह से ग्लो करते हैं क्योंकि इनके अंदर का जो टेम्परेचर बहुत हाई लेवल पे बढ़ जाता है। एंड वी कैन से सन एंड स्टार्स आल्सो ग्लो बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा प्रेजेंस इनसाइड देम। लेट्स मूव टू द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, which is बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सबसे पहले 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस जी ने कैलकुलेशन की फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की। इसी कैलकुलेशन को आगे थोड़ा बढ़ाया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और उन्होंने नई स्टेट ऑफ मैटर बता दिया कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एक स्टेट ऑफ मैटर हो सकती है। पर 2001 में 2001 में 3 और नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये जो स्टेट थी उसे प्रैक्टिकली सबके सामने, दुनिया के सामने प्रेजेंट कर दिया, और इसीलिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। वो 3 साइंटिस्ट कौन थे, एरिक ए कॉर्नेल, दूसरे थे वोल्फगैंग कैटरले एंड थर्ड थे कार्ल ए वीमन। सब यूएसए के थे और इन्हें नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में क्योंकि इन्होंने अचीव कर लिया था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। अब ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है क्या, ये एक फॉर्म है ऑफ, इसे बनाया जाता है बाय कूलिंग अ गैस एट एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100 and 1000 डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर। तो दिस इज जो ये कंडेंसेट फॉर्म है मैटर की, इसे कैसे बहुत ज़्यादा कूलिंग करके सुपर लो टेम्परेचर पर कूल करके उन्होंने अचीव किया। तो आज हमने जो जो पढ़ा उसे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा मैटर क्या है और मैटर को हमने किस बेसिस पे क्लासीफाई किया, एक तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर और एक केमिकल नेचर के बेसिस पे। आगे हमने पढ़ा कि मैटर के फिजिकल नेचर क्या है, मैटर
मैटर के बारे में हमने पढ़ लिया, फिजिकल नेचर पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पढ़ लिया, हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है स्टेट ऑफ मैटर पे, प्रेशर का क्या इफेक्ट है स्टेट ऑफ मैटर पे, हम ये देखेंगे कि इवापोरेशन क्या है, फिर फैक्टर्स ऑफ इवापोरेशन क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इवापोरेशन क्या है, राइट। तो अब आगे की क्लास में हम ये देखेंगे। Thank you so much for staying to the end.